for the spermatogenesis. Yes, during spermatogenesis means it starts at puberty, and the maturity age comes in the female when, what is the age? Yes, 10 to 12 10 to 9 to maturity starts, puberty starts. different episode. हाँ मतलब puberty ends 18. अरे कोई भी एक तो बोलो। तो 9 9 से to 11 जेंटली स्टार्ट होता है ना। नहीं, एग्जैक्टली पूछा था क्या होता है। तो प्यूबर्टी इन जनरल जो डाटा अपने को अवेलेबल है, इससे हमें 12 to 15 लेते हैं मेल्स में एंड 11 to 14 लेते हैं फीमेल्स में। सो वी कैन से प्यूबर्टी स्टार्ट्स इन फीमेल, puberty starts in female, that is 11 to 14, 11 to 14 years, yes or no? Yes, क्लास में आर्यन नहीं है ना? उसके इधर पूजा ना सर, तो वो आज नहीं आएगा। हाँ, in case of male it is 12 to 15. Is it clear or not? Yes, sir. So Yes, sir. puberty in female it is 11 to 14 and in male it is 12 to 15. Basically puberty क्या है? It is the age of sexual maturity where the male and female starts producing gametes. It is the age of sexual maturity where their sexual organs, means primary sexual organs, are able to produce, are able to form gametes, means matured gametes through which it can form sperm as well as secondary oocyte, or we can say ovum. Is it clear? So हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बात किया था कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस at puberty spermatogenesis starts. ये ऐसा इसीलिए होता है due to the increase of GnRH, which is a hypothalamic hormone. What is this? It is a hypothalamic hormone which is secreted from the hypothalamus, which acts on anterior pituitary. It is a gland. It is the master gland, yes or no? Which stimulates Yes. the secretion of gonadotropin. We have two gonadotropin, means hormone responsible for gonads development and gametes का formation. Is it clear? So LH as well as FSH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Luteinizing hormone, this acts on Leydig cells which are present in between the space of seminiferous tubule that we call as interstitial space. क्या बोलते हैं? Interstitial space बोलते हैं। अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. Interstitial space बोलते हैं, and in this interstitial space there are interstitial cells which are also known as Leydig cells. So LH acts on Leydig cells which stimulates the synthesis and secretion of a male sex hormone that we call as androgen. क्या बोलते हैं? Androgens. And which stimulates further spermatogenesis. क्या करते हैं वो? Spermatogenesis का formation करते हैं। Yes or no? So next we have follicle stimulating hormone. मैंने सबको कैमरा ऑन करने के लिए बोला है। आरव, समर, तनुश्री, आप लोग क्या गेस्ट हो क्या मेरे लिए? सर 2 मिनट रुकेंगे, मैं करता हूँ। क्लास में ना क्लास की तरह बैठो, नहीं कि कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई सो के पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है। कंफर्ट जोन में रहो तो कुछ माइंड में जाएगा नहीं। वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, वो कंफर्ट जोन में ही पहुंच जाएगा। और जहां पर आपको पता है ना कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे काम करता है क्या? हाँ, तो इसको आप एक्सेप्ट करो ना। इक्विलिब्रियम पे कोई भी सिस्टम काम नहीं करता जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है? Equal. इक्वल होता है। तो जब प्रोडक्ट बनेगा इनका काम कहाँ से होगा? पढ़े तो उसका अप्लाई करो। सो इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल कहाँ होता है? सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर प्रेजेंट होती है। और सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर क्या क्या होती है वो हम लोगों ने सारा पढ़ रखा है। क्लियर है क्या?
which stimulate the secretion of some factor which are helpful in spermiogenesis. Is it clear? इसके For maturation. हाँ, apart from this it also provide nutrition. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके आगे बढ़ते हैं। आपके लेवल में ज्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। आपने कभी नाम सुना होगा, अगर नहीं सुने तो आगे को बहुत नाम सुनने को मिलेगा। यहाँ पर 12th में नहीं, कॉलेज में आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा। नाम होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या होता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो अपने पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होता है, जो अपने पास इम्यून सिस्टम होता है, उनसे स्पर्म को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा है कि अपने पास जो इम्यून सिस्टम है वो स्पर्म को ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कि ये फॉरेन का आदमी है, बाहर का आदमी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि बेचारा स्पर्म बहुत मासूम होता है, वो जरा सा भी हार्श कंडीशन में रह नहीं सकता है। समझ रहे हो क्या? तो इसके लिए इनको बचाने के लिए क्या होती है, जो अपने पास टेस्ट सेमीफ्रस टिब्यूल होती है, उसके अंदर जो आपके पास सर्टोली सेल्स होती है ना, जब उनके पास सर्टोली सेल्स होती है, इसमें क्या होती है, और आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट मिलने के लिए, न्यूट्रिशन, क्योंकि टेस्टिस को भी चाहिए एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल गेट फ्रॉम ब्लड। तो इनका मतलब ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर होगा, और ब्लड वेसल आएगा तो मतलब ब्लड भी रहेगा, और उस ब्लड में क्या होता है आपके पास? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होते हैं, मीन्स इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। WBC होता है, लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है। तो अगर ये, और मैक्रोफेज भी होता है, ऐसे ये अपने बॉडी के स्पर्म सेल्स को फॉरेन सेल्स की तरह ट्रीट करता है। अगर इनसे बचाया ना जाए तो इनको खत्म कर देगा, मैक्रोफेज इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए बचाने के लिए जो आपके पास सर्टोली सेल्स होते हैं ना, तो बीच में क्या होती है, कुछ एक्सटेंट तक बीच में क्या होती है, टाइट जंक्शन होती है। क्या होती है? अभी मैं आपको डायग्राम में शो करूंगा। दिस इज अ टाइट जंक्शन व्हिच प्रिवेंट्स द ब्लड और द इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स टू गो इनसाइड। अगर अंदर जाएगा तो सारे के सारे स्पर्म की डेथ हो जाएगी, उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिस इज द ब्लड टेस्टिस बैरियर व्हिच इज फॉर्म्ड एट द टाइट जंक्शन इन द सर्टोली सेल्स, and these blood testis barrier protect the sperm from immune system of the body. So this blood testis barrier is formed by Sertoli cells. इतना अंडरस्टेबल है क्या? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा? वेट अ मिनट। ये वाला क्या बनाया मैंने? ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिनकी तरफ क्या होती है पूरा, ये पूरा अपना मैंने क्या बनाया, पूरा सेमीफेस ट्यूब्यूल बनाया। क्लियर है क्या? जिसके अंदर क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। जो आपको मैंने कर्व वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है आपके पास? सर्टोली सेल्स है। ये भी क्या है? सर्टोली सेल्स है। और ब्लड का जो प्रेजेंस होती है, ब्लड का वेसल्स होती है, वो किधर होती है? इधर आसपास होती है, और इस एरिया में होती है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो अगर ये वाला पाथ अगर खाली होता, जैसे ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, वैसे अगर ये खाली होता तो ये ब्लड आगे पहुंचता कि नहीं पहुंचता? पहुंचता सर। अब ब्लड में क्या होती है? मैक्रोफेज होती है, बहुत सारे सेल्स भी होते हैं, इम्यून सिस्टम की सेल्स। हाँ। पता होगा किस तरीके से वो फॉरेन, जैसे कि बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन अपने को अटैक करता है। फॉरेन एंटीजन का मतलब जो बाहर के पैथोजन अटैक करते हैं, उनके बॉडी में क्या होती है? पैथोजन होती है, जो कि अपने को इन्फेक्शन कोज करता है। तो कैसे उसको हमला करता है? बिल्कुल वैसे ही ये स्पर्म सेल्स को भी हमला करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक बैरियर बनी होती है, एंड विच इज फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन बोलते हैं, विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ द इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल टुवर्ड इनसाइड। क्योंकि स्पर्म वगैरह तो यहाँ पर रहेगा ना, अगर अंदर पहुंच जाएगा तो सारे को सबके सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। यस और नो? अरे बोलो ना। लेकिन डिस्ट्रॉय क्यों करेगा ब्लड? मैंने बोला ब्लड में जो आपके पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, हाँ। वो इनको फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करता है। इट ट्रीट्स द स्पर्म एज फॉरेन सेल, क्योंकि इनको बाहर जाना होता है ना, ये अपने बॉडी में रहने के लिए थोड़ा ना हाँ बनी, सर, समझा। इनको बाहर जाना होता है, इसलिए इनको फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करता है।
अगर जैसे अपने बॉडी में यही एक सेल्स है जो कि बाहर जाते हैं, आप अपने माइंड के थ्रू, अपने मेमोरी के थ्रू आप मेरे को रिकॉल कीजिए, कोई ऐसा सेल्स है जो अपने बॉडी के बाहर भी जाता है? नहीं। ओनली सेल विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट, क्योंकि बना ही है बाहर जाने के लिए। क्लियर है क्या? इसलिए इनको फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करता है और इसलिए हमें इसको बचाना पड़ता है। सो दिस बैरियर, दिस इज द बैरियर, BTB मतलब ब्लड टेस्टिस बैरियर, विच हेल्प इन preventing the sperm from being get eaten or being get killed from the immune system of the body. अब क्लियर है? अभी नहीं है? हाँ सर, अभी क्लियर है। So these Sertoli cells and it also acts as endocrine gland. ऐसा क्यों करता है? Since it secretes some chemicals. We have 3 types of chemicals. आपने नाम होगा मोलेरियन डक्ट। मोलेरियन डक्ट फंक्शनल डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? मेल्स में, फीमेल्स में? किसमें? फीमेल 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 होता है। फरहान, तनुश्री, आप लोग क्लास में हो गया? आरव, समर, हाँ सर, क्लास में हूँ ना। तो आप लोग कैमरा ऑफ क्यों है? तो 5 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला? एंटी मोलेरियन जो पार्ट, मोलेरियन जो पार्ट होती है, ये फंक्शनल एंड डेवलपमेंट किस में होती है? मेल्स में, फीमेल्स में? आरब, आरब, हाँ सर। किसमें फंक्शनल होती है? मेल्स में, फीमेल्स में? फीमेल नहीं, मेल मेल मेल। कंफर्म हो जाओ, किसमें किसमें होती है? मेल। इसका मतलब आपने पिछले क्लास को कुछ पढ़ा नहीं है। अरे बताया था ना, वोल्फियन डक्ट है, मोलेरियन डक्ट है, ये सब बताया था कि नहीं बताया था? अरे डब्लू है तो ये डब्लू नहीं है, ये मेल्स के लिए है, ऐसा तो मैंने बताया था क्या? तनुश्री, तनुश्री, सो फीमेल्स में होता है। कौन सा? अरे इसको वोल्फियन डक्ट को ही तो हम लोग बोलते हैं ना, मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो वोल्फियन डक्ट फंक्शन होता है मेल। यहाँ पर है मोलेरियन डक्ट। मोलेरियन डक्ट फीमेल्स में फंक्शनल होती है ना। अगर हाँ। मोलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा तो ओवरी बनेगा इससे, मतलब ओवरी नहीं, ये फीमेल बनेगा, फीमेल के पार्ट्स बनेंगे। क्लियर? अरे बोलो तो सही। हाँ हाँ सर। पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आप लोगों को याद रहेगा? सो इन्हीं की वजह से क्या होती है? एंटी मोलेरियन हॉर्मोन्स का सेक्रेशन होती है फ्रॉम दियर सर्टोली सेल्स, क्योंकि टेस्टी तो बन चुका होता पहले, विच इनहेबिट द मोलेरियन डक्ट इन मेल। इतना क्लियर है? सेकंड है इनहिबिन हार्मोन। सेकंड क्या है? इनहिबिन हार्मोन मींस इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक। इज इट क्लियर? अरे बोलो ना, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली एंड हाइपोथैलेमस। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक। और क्यों होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। सो इनहिबिन हार्मोन का काम क्या होगा? जब स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इट विल बंद करने Stop को द बोलेगा। प्रोसेस। negative feedback so that it can stop the process of spermatogenesis, और इसको रोक दिया या डिक्रीज कर दें, क्योंकि एनर्जी को भी कंजर्व करना होती है। सिस्टम है जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हुआ हर जगह एप्लीकेबल होती है। क्लियर है क्या? सो नेक्स्ट जो Yes, आपका sir. तीसरा टाइप क्या है, वो क्या है? एबीपी। एबीपी मतलब क्या? एबीपी न्यूज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाइट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ना, एबीपी न्यूज चैनल। आपको रखे आगे।
अच्छा, ना एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, Androgen। आप लोग लिखा है ऐसे बोल रहे हो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज एबीपी। इसका काम क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है कहाँ पर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, और इनके कंसंट्रेशन बढ़ने से मींस डाइल्यूशन बढ़ती है ना, कंसंट्रेट नहीं बढ़ने से डाइल्यूशन बढ़ती है ना। कम होती है। नहीं, कम सर, होती है। सही बोल रहा हूँ ना, मैं गलत बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने से इनकी डाइल्यूशन कम होती है, और इसकी वजह से इनको स्पर्मेटोजेनेसिस में इसको हेल्प करता है। क्लियर है क्या? यस हाँ, मेरे ख्याल से आज आप लोग को लिखना चाहिए, साथ में लिखो आप लोग सर, को। हम लोग लिख लेते हैं तभी आप लोग, बाद में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज नोट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो मैं इस चक्कर में नहीं रहने वाला हूँ। जल्दी लिखो। सर ये तो हो गया था ना। यहाँ से नहीं हुआ था ना, तो ये लिख लिया। यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से। हाँ, वहाँ से लिख लो। सर वो आप रब कर दो ना, जो आपने ऐसा लाइन खींचा। ठीक है, कर दे रब। आपको 2 मिनट देना, पूरा पेज जल्दी लिखो, ओनली 2 मिनट्स। सर तो मतलब इसके बाद आप पीडीएफ नहीं भेजोगे? नहीं, लिखो ना आप लोग, पीडीएफ तो मैं पीडीएफ में रिकॉर्डिंग भेजूंगा। सर इसके ऊपर कुछ नहीं है ना? हम लोग यहीं तक लिखे थे ना, यहाँ तक, लास्ट क्लास में इससे आगे तक पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ओनली यहाँ तक। इसके नीचे लिखना है, कॉपी में चेक कर लो ना, क्लास में कहाँ तक लिखे थे। हाँ सर। स्पर्मिएशन क्या होता है? जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। फिर एक काम, डायलिसिस में आप जाते हैं। लोग एक काम कीजिए, साथ में लिखते भी रहिए और मुंह से बोलते रहिए, ठीक है ना? जैसे मैं साथ में लिखता भी बोलता भी रहता है ना, वैसे आपको भी करना है। अच्छा, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ सर। हाँ, टेल स्ट्रक्चर। स्पर्मेटिड जब स्पर्म में डेवलप होता है, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर? अगर मैं तुमसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, इन तीनों को अगर मैं रिलेट करने के लिए बोलूं, तो आप कैसे मुझे समझाओगे? मतलब मुझे, आप अगर आप लोग इस लायक होगे कि मुझे समझा दो, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से। सर मतलब डेफिनेशन में बोलना है ना आपको। नहीं, मैंने बोला इन तीनों को आप रिलेट कैसे करोगे? सर किसको? मैडम आप लोग लिखते रहिए और बोलते रहिए। तो लिखेंगे कैसे फिर अभी? तो माइक छोड़ दो ना, और बोलते रहो, लिखते रहो। सर जब स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सर बाकी सब इसके पार्ट्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है। ये थोड़ा ठीक, सही से अल्फाज बोला। मैं आपको डेफिनेशन बोल रही थी पूरा। मैं तीनों को, चलो कोई नहीं, मैं तीनों को कंबाइन करने के लिए बोल रहा था। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरा लॉन्ग स्टेप है, जिसमें आपके पास इलोंगेट, मतलब कि क्या होगा, उसका ग्रोथ फेज होगा, मैचुरेशन फेज होगा, स्पर्मिएशन होगा, और स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये सब के सब इसी में आएंगे। क्लियर? हाँ सर।
क्लास में कितने बच्चे हैं यार? ओनली 7। 8 9 और तो नहीं। अच्छा फरहान और क्लास में नहीं आता है क्या? से नहीं आता। कभी कभी आता है। अच्छा मन बादशाह जब मन करे तो आता है, तो नहीं आता है। मन बादशाह नहीं बनने का। अच्छा इस पर में थियोलियसिस क्या होता है? क्या? क्या क्या सर? इस पर मेटोलियोसिस। और ब्रेक डाउन होगा क्या? ये लियोसिस लाइसिस नहीं है। इसी से होगा। बेवकूफ लड़का। कलर दिखने के बाद पता चला। हाँ सर वापस से बोलो ना, क्या बोला? अच्छा लिखा है। स्क्रीन पे लिखा है, लिख लिया। अरे मैं आप लोग नहीं को सर, नहीं लिखा। मैं आप लोग को 2 मिनट की वजह 5 मिनट हो गया। अरे यार ये क्या मतलब है? चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जल्दी लिखो। आप लोग मल्टी टैलेंटेड नहीं हो, लिख भी रहे हैं बोल भी रहे हैं। लिखने का अलग ब्रेन है, बोलने का अलग ब्रेन है। तो माइक ओपन रखते हैं तो पीछे का भी आवाज आ जाता है ना सर, इसलिए ओपन नहीं रख सकते। कोई नहीं। इसके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर हाँ सर। आपने गिव्स नेगेटिव क्या लिखा है नीचे? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। और बोलो नेगेटिव फीडबैक। माइनस वी का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस वी का मतलब होता है नेगेटिव। अगर आप लोग अभी क्लास के बाद लिख के खत्म करोगे तो मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा आधे का। अगर बाद में लिखोगे तो फिर मैं नोट्स नहीं भेज रहा हूँ। क्लास के बाद जैसे क्लास जैसे खत्म हुई उसके जस्ट बाद आप लोग हमने खत्म कर दिया तो ठीक है। कोई मैं नेक्स्ट वरना आज मैं करके देखता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से फिर मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे मेरी क्लास खत्म हो, मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। आ रही है सर। जैसे मेरे क्लास खत्म हो उसके जस्ट बाद आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ। क्लियर? हाँ सर, करते हैं। नहीं करते हो आप लोग? कोई आज नोट पूरा कर रहा है, कोई कल कर रहा है पूरा नोट। कब क्लास हुआ है? वेंसडे को हुआ है। ऐसा नहीं होता है ना फिर। सो नेक्स्ट बात करते हैं जो स्पर्मेटोजुआ है ना। सर लिख आपने के ऊपर बताया का बताया नहीं। क्या नहीं बताया? स्पर्मियोलिसिस कुछ तो लिखा था ना। परमेटोलियोसिस। आगे आएगा ना।
अच्छा तो ठीक आपने अभी क्यों पूछा? मेरी मर्जी, मैं जब पूछूं मैं तुमसे पूछ के पूछूं, मुझे कब पूछना है। तो नहीं, आपके पास स्पर्मेटोजुआ है ना, स्पर्मेटोजुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सिंगुलर क्या होता है? स्पर्म। बहुत अच्छा, स्पर्मेटोजुआ का सिंगुलर स्पर्म, वाह बहुत। उसका नेम उसका स्पर्म होता है, ऐसा बोल। मैंने इसका सिंगुलर पूछा। है तो है मैटोजून। सिंगुलर, ये क्या प्लूरल है? दीज आर फॉर्म इन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल, जो मैंने बहुत पहले बता रखा है, ऑफ द टेस्टिस। इन दिस स्पर्मेटोगोनिया आर टू टाइप्स। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? दीज आर द मेल जर्म सेल, जिससे स्पर्म्स बनने होते हैं। अरे बोलो ना। और इसी स्पर्मेटोजोन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्लियर? So these are formed in the inside the wall of seminiferous tubule. In this we have Sertoli cells and spermatogonia, where it has two types, type A and type B. So we can write as type of A or germ cell. क्या बोला मैंने? Type of A, type A spermatogonia या germ cell या male germ cell बोलते हैं या sperm mother cell बोलते हैं. Is it clear? So in this the 44 plus XY जो अपने पास क्या होती है? 46 क्रोमोसोम होती है कि नहीं होती? अरे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होती है ना। सो इसमें टाइप ए जो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है या जो मेल जर्म सेल है, अंडरगोज माइटोसिस, मींस अपना नंबर बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो माइटोसिस करेगा, एंड मोर नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया ऑफ टाइप ए आर फॉर्म। क्लियर है क्या? तो बहुत सारे नंबर ऑफ ए बढ़ जाएगा, प्लस साथ में क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया ऑफ टाइप बी का फॉर्मेशन होगा। इनका मैकेनिज्म समझना ऐसा क्यों होता है। लेकिन क्या होता है, जो टाइप बी वाला है, मींस उसमें से दोनों होंगे 40x प्लस SY। अभी तक यहाँ पर कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ माइटोसिस चल रहा है, मींस अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। एक है, एक से दो है, अपना नंबर बढ़ाते जाता है। क्लियर है क्या? एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पर भी इसका प्लैडी लेवल n है ना? हाँ 2n है। क्यों? कि अभी तक रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, अभी तक रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, इसलिए ये 2n के फॉर्म में ही है। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब टाइप ए वाला है, ये हमेशा का हमेशा ऐसे ही रहेगा, और ये टाइप बी वाला आगे बढ़ेगा। क्लियर है? ये अपना नंबर बढ़ाएगा, उनमें से कुछ बी बनेगा, बी वाला ही जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन में, बी वाला ही जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन में। इज इट क्लियर? सो द टाइप बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, जो कि अपना विच इनलार्ज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अपना साइज बड़ा करेगा और क्या बन जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। These primary spermatocytes means 44 plus XY goes meiosis 1, means the reduction division, in which it forms two secondary spermatocytes. हर एक primary spermatocyte will give rise to two secondary spermatocytes, which will reduce the chromosome into half, 22 plus X and 22 plus Y. Is it understandable or not? बस सर यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So next हाँ is 22 plus X and 22 plus Y develops and form spermatids. Is it clear? हाँ हाँ सर। सर अरे बोलो ना, क्लियर है सर। ये समझ में नहीं है? बताओ। क्लियर है। पक्का? हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? मेयोसिस 2 होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। लेकिन क्रोमोसोम एज इट इज रहेगा। हाँ सवाल माइटोसिस। पूछेगा, सवाल पूछे कि रिडक्शन डिवीजन क्यों होता है। अच्छा, यहाँ पर इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, ये फीमेल्स में आती है। यहाँ पर जो उसमें जो मेयोसिस 1 होता है, जो सेकंड पहला जो पोलर बॉडी का रिलीज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अनवांटेड क्रोमोसोम को हमें रिमूव करना है। अरे बोलो ना। और हमें एट ए टाइम 1 बेबी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स आर द ह्यूमंस आर द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, और ये एट ए टाइम अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है, मींस इसीलिए मोनोजाइगोटिक वाला कंडीशन उसमें होता है। तो अगर दोनों का दोनों डेवलप करने लगे, दोनों डेवलप करने लगे, तो क्या होगा? यूट्रस में दो एग का फॉर्मेशन होगा ओवरी में।
तो ऐसा ना हो, एक पोलर बॉडी रिलीज होती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? ओनली टू मेंटेन द, ओनली टू रिमूव द अनवांटेड क्रोमोसोम। क्लियर? अगर उसमें भी कुछ अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती, वहां पे XX होता है और XY की जगह कुछ XZ होता, तो वहां पर भी कुछ अलग मेथड होता, लेकिन है कैसा, XX है, इसीलिए क्या होता है, एक रिमूव होता है, चाहे ये वाला रिमूव हो या ये वाला रिमूव हो, बात तो बराबर। तो अपने पास हमें चाहिए एक ही क्रोमोसोम, ओनली X है, एक होता है रिमूव। सिर्फ उनके पास मैक्सिमम पार्ट किसके पास होती है, सेकेंडरी उस साइड के पास होती है, और सिर्फ पोलर बॉडी के पास क्या होती है, कुछ ओनली हाफ क्रोमोसोम नंबर, साथ में कुछ उनके पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट। मान लो ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, इसमें क्या था, ओगोनिया था ना, इनका कुछ हिस्सा क्या बनता है, पोलर बॉडी बनता है पहला वाला, बाद बाकी पूरा क्या बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनने के लिए तैयार रहता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पूरा कंप्लीटली दोनों इक्वल डिवीजन होती है, और वहां पर साइटोकिनेसिस इक्वल नहीं होती, अनइक्वल साइटोकिनेसिस व्हिच लीड्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज एग, फीमेल एग एंड द स्मॉलर पोलर बॉडी। क्लियर? तो निकालते पढ़ेंगे Yes, sir. meiosis 2 and forms 2 spermatids। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, और हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, बात किया था क्या? अरे किया था, किया था। हाँ। देन दिस स्पर्मेटो, एक होती है आपके पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कोई समझदार है जो मुझे बताएगा क्या होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस Formation of spermatocytes. देख लिया और बोल दिया, वो समझदार हो ना? मैं क्या बोला, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो टर्म को देखो ना, छोड़ो उसमें क्या लिखा है वो छोड़ो, मैं वहां पर गलत भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? स्पर्मेटोसाइट्स है ना, स्पर्मेटोसाइटो एंड जीनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्लियर? हाँ सर। In this, the spermatocytes undergoes and form each spermatids, and these spermatids having 22 plus X or 22 plus Y, then it changes shape and develop into mature sperm after getting nourishment। पहले वो सर्कुलर होता है, अब क्या हो जाएगा ये, a head having a tail। अब बीच में क्या होती है, मिडिल पीस होती है, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यहाँ पे नेक में क्या होती है, सेंट्रल वगैरह होती है, जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड और सेल डिवीजन में काम आती है। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास जो पिछले क्लास में आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि सर ये क्या है, वो सारा लिखा दो ना, वो सारा टर्म आ गया है। पहला है स्पर्मियोजेनेसिस। खुश? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर स्पर्मेटिड। इसका मतलब क्या, जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस 2 इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, और वो छोटे होते हैं। बाद में क्या होता है, इट ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म और स्पर्मेटोजोन बाय गेटिंग नरिशमेंट। क्लियर है क्या? दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटो, यहाँ पे क्या है, मेटोलियोसिस। ये तो स्पर्मियोजेनेसिस था ना? उसी का दूसरा नाम है ये वाला, मैंने पूछा था ना स्पर्मेटोलियोसिस, वही है। समझ में आ रहा है क्या? गलत नहीं है, यहाँ पे मैंने और वाला ऑप्शन लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख दिस। क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। बेसिकली इट इज ना स्पर्मेटेलियस, ये यहाँ पर सही है, मुझे लगा ओ होना चाहिए। क्लियर है क्या? इट इज स्पर्मेटेलियसिस, लियोसिस। क्लियर है? एंड फॉर्म्स टू स्पर्म और वी कैन से स्पर्मेटोजोन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। यहाँ पर भी आप लोग ही कर लेना। क्लियर? अरे बोलो। हाँ सर। सो इन दिस, हाँ नेक्स्ट है आपके पास
जो आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये वाला प्रोसेस है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है इन ह्यूमन बीइंग। मैच्योरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इज इट क्लियर? अरे बोलो ना। हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मिएशन। क्या बात करते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होती है? लेडिक सेल से लेडिक सेल से एपिडाइमिस में जाना सर। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्योंकि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसी के अंदर क्या होता है? सर्टोली सेल्स होती है। वहां से इनका रिलीज होना, बाहर आना विद द हेल्प ऑफ रीट टेस्टिस, दैट वी कॉल एज स्पर्मिएशन। क्लियर है? पिछले क्लास में किसी और को किसी और में भी डाउट था, वो टर्म दोबारा आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास सेमिनेशन। सेमिनेशन क्या होती है? लिबरेशन और रिलीज ऑफ स्पर्म। लिबरेशन का मतलब यहाँ पे रिलीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, दैट वी कॉल एज, जो टेस्टिकुलर पूरा पार्ट था इससे बाहर निकलना, ये पूरा का पार्ट किसमें? टेस्टिस में, यहाँ से बाहर निकलना, दैट वी कॉल एज सेमिनेशन। सेमिनेशन। नेक्स्ट है इजाकुलेशन। लिबरेशन और रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल, that we call as ejaculation. Is it clear? यस हाँ सर। सर। नेक्स्ट आपके पास इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मैमेलियन स्पर्म, और सिंपली वी कैन से स्पर्म टू द वेजाइना ऑफ फीमेल, दैट वी कॉल एज इंसेमिनेशन। क्लियर? अगर हम लोग इनके काउंट करें, 1 ml of sperm contains 20 to 120 million of sperm. Clear? किधर 200 लिखा हुआ था किधर? सर? आपने पिछले नोट्स में 200 दिया था। वो 200 कुछ और है, मैं बताऊंगा क्या होता है 200। कहाँ पे 200 लिखा हुआ है? सर आपने पहले नोट्स में वो लिखा था कि, वो मैंने पर क्वाइटस लिखा था, पर क्वाइटस। हाँ यस सर। यहाँ पे नहीं 1 ml लिखा है, हाँ और अप्रोक्स इट इज कितना? 4 to आई थिंक मैंने कितना लिखाया था? क्या सर? अरे कितना उसका वॉल्यूम मैंने बताया था आपको? 4 to 5 ml ना? अरे बोलो ना। 4 to 5 हाँ सर। 4 to 5 ml पर क्वाइटस मीन्स पर मैटिंग। अगर मल्टीप्लाई करोगे इतना को इतना से, इतने टाइम से, तो इतना हो जाएगा ना, पिछले वाले डाटा से मैच कर जाएगा। अरे बोलो ना, अरे बोलो तो सही। हाँ सर। हाँ, सो इन ह्यूमन एंड लेडिक सेल्स की मैच्योरेशन 10 इयर्स में आसपास होना शुरू हो जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में, दैट इज द oogenesis में। इट इज ओनली ड्यू टू द गेट रीड ऑफ अनवांटेड क्रोमोसोम। क्लियर है क्या? यस सर। इसमें क्या होता है? ये आपके पास क्या है? टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम, दैट इज 44 प्लस XY एंड 44 प्लस XY। ये मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है क्या? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये मल्टीप्लाई करेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। दिस विल बी द टाइप बी एंड दिस विल बी द टाइप ए। जो टाइप बी वाला है ये फर्दर इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर है क्या? तो यहाँ तक क्या था आपके पास? मल्टीप्लिकेशन फेज था। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ फेज। बोलो ना, जहां पर अपना साइज को बड़ा करेगा। देन दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जहाँ पे इसका 2n प्लेटेलेबल क्या है? डिप्लॉयड है। क्या है? प्लेटेलेबल डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड। एंड अंडरगोस M1 M1 जाएगा एंड फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मींस 22 प्लस X and 22 plus Y. This further undergoes second meiotic division and form 22 plus Y, 22 plus Y, 22 plus X, 22 plus X, which further develops and form that we call as spermatids. क्या बोलेंगे? Spermatids. And these spermatids enlarge and gain their shape and having tails and gains motility. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन बोलते हैं। एंड फॉर्म द
हैप्लॉइड, पहले भी यहाँ पर भी हैप्लॉइड था, यहाँ पर भी हैप्लॉइड हो जाएगा और यहाँ पर भी हैप्लॉइड ही रहेगा। यहाँ पर क्या था, डिप्लॉइड था, यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। जो अपने पास एक से फाइनली 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द मैच्योरेशन फेज, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, जो मैंने आपको अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लिखाया है ना, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, उसको आपको एक ही बार पढ़ना है। मीन्स जब तक आपको पढ़ना है जब तक आपके माइंड पे सेट ना हो जाए, उसके बाद उनको दोबारा पढ़ना नहीं है। क्लियर है क्या? सिर्फ उनका आपको एप्लीकेशन दिमाग में रखना है कि हाँ कुछ इस तरीके से टाइप ए टाइप बी आपको कभी नीट में पूछने वाला नहीं है कि टाइप ए क्या होता है, टाइप बी क्या होता है। क्लियर है क्या? जो पूछेगा वो क्या होगा, यहाँ से पूछेगा, ये सब पूछेगा और ये पूछेगा वो। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ हाँ गए। सर। ऐसा करोगे क्या? यस सर। ये आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर है। ये सब क्या है, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे पहले क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन फिर स्पर्मेटोजोआ इन द सर्टोली सेल। सर हाँ सर। सर आप वो सेकेंडरी और प्राइमरी एक और बार बताएंगे क्या, मतलब मुझे अच्छे से समझा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। इनिशियली क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होती है, क्या होती है, स्पर्मेटोगोनियम, ये टाइप ए वाला है और वी कैन से इट इज जर्म सेल। कौन सा सेल है? जर्म से। ये मल्टीप्लाई करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मल्टीप्लिकेशन फेज। कोई क्लास में चैटिंग भी चल रहा है क्या मेरा? समझा सर। क्लास में चैटिंग भी चल रही है क्या आपने? ऐसा मुझे लग रहा है कोई क्लास में चैट भी कर रहा है। क्लास में इंटरेस्ट नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ तो मैंने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए means that is the germ cell which having multiplication phase means undergoes mitosis, or mitosis is the only way to increase the number of cells, to increase the number of cells. Is it clear? इनके अलावा अपने पास डिवीजन के दो ही मेथड है, चाहे तो माइटोसिस है या मियोसिस है। मियोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, और माइटोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स। तो जहां जहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना हो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, माइटोसिस यूज करते हैं। सो हियर इट विल यूज माइटोसिस एंड फॉर्म, कुछ टाइप ए वाला फिर से बनाएगा और कुछ टाइप बी बनाएगा। टाइप ए वाला तो रह जाएगा, फिर फर्दर ये सेम काम, ये वाला सेम काम करेगा कि टाइप बी बनाएगा, टाइप ए रह जाएगा, टाइप बी बनाएगा, टाइप ए रह जाएगा। अरे आगे भी तो उसको इसमें बनाना है ना, एक ही बार बनाकर खत्म तो नहीं करना है उसको, स्टोरी में कुछ रखना तो पड़ेगा। तो सर आपने वो क्या कुछ तो पॉइंट बोला था ना कि स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए मतलब कुछ डीजनरेट हो जाता है, मतलब अनवांटेड, ऐसा कुछ बोला था आपने। अरे वो मैंने फीमेल में बताया था कि जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, पोलर, अच्छा वैसा उसमें नहीं होता है, ऐसा बोला था आपने। हाँ ओके। मेल्स में पोलर बॉडी नहीं होती, हाँ ओके ओके। उनकी जरूरत ही नहीं है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत सारे हार्श कंडीशन से ट्रेवल करना पड़ता है। पहला तो क्या है, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन वहां पर भी बहुत सारा ऐसे ही बाहर डिस्प्ले होती है, सारा चीज अंदर सकअप नहीं कर पाता। क्लियर है क्या? हाँ ये कोई ह्यूमन है नहीं कि खाना खाया सारा का सारा अपना हाथ से चाट पूछ के सारा खाना खा गया। ये क्या है, अपने आप ही एक फिनोमेना होती है, एक बॉडी के फिजियोलॉजी के हिसाब से होती है। तो सारा का सारा स्पर्म, सारा का सारा सीमेन अंदर सकअप नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे तो वहीं पे रह जाते हैं, मींस इन द वेजाइनल कैनाल। फिर वहां से कुछ पोर्शन क्या होती है, कुछ उसका पार्ट, कुछ इसका परसेंटेज क्या होती है, मैक्सिमम परसेंटेज दे आर सक्ड अप एंड फिर वो ट्रेवल करता है यूटेरस में। तो अरे लिक्विड है तो कुछ पार्ट यूटेरस में भी अटैच हो जाएगा, बहुत सारी वहाँ पे, बहुत सारे की वहाँ पे डेथ हो जाएगी। इतना एसिडिक कंडीशन वजाइना में है, क्योंकि वजाइना में एसिडिक कंडीशन जरूरी पड़ता है क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे का उसका ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए क्या होता है वहाँ पर पीएच कंडीशन ज्यादा होता है, मींस पीएच हाईली एसिडिक होती है। उतना भी हाईली एसिडिक नहीं, नॉर्मली एसिडिक होती है, मतलब इतना एसिडिक कि बैक्टीरिया और या फिर कोई माइक्रोब का ग्रोथ इजीली ना हो पाए। क्लियर है क्या?
तो बहुत सारा डिस्टर्ब वहां पे हो गया। और बहुत सारा आपके पास क्या है कि 2 ओवरी है, अब दोनों तरफ जाएगा। अब इसमें को थोड़ा ना पता है कि हाँ कुछ मालूम चलता है कि एक किधर है, एक किधर है। चाहे तो पॉसिबिलिटी एक इधर का हो सकता है या फिर इधर का, चाहे एक इधर हो या इधर हो। तो कुछ स्पर्म इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, मैक्सिमम जाएगा उधर, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। क्या होती है? कीमोटैक्टिक मींस केमिकल, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिनकी वजह से स्पर्म उधर अट्रैक्ट होते हैं। बोलो ना। और इनका मैकेनिज्म आप लोग कॉलेज में आपको अच्छे समझा जाएगा। और कभी कॉलेज में जरूरत पड़े कि सर ये समझ में नहीं आया तो फिर कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको अच्छे से क्लास लेके समझा दूंगा, ठीक है? वैसे आपको Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ ठीक है? सर। पहले आप लोग कॉलेज पहुंचो, फिर क्या, फिर तब देखी जाएगी, ठीक है ना? तो समझ में आ गया क्या? तो कुछ इधर हाँ जाएगा, सर समझा। इसीलिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्पर्म से कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे हमें एक ही चाहिए एट ए टाइम, 1 बेबी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन है, हाँ हाँ इतना बड़ा चीज हम नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो नहीं सकती, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है क्या? वो हाँ बाई सर समझ गया। बाई अलग कंडीशन से वो ट्विंस होते हैं। कुछ फेलियर गैमेट्स के सेग्रीगेशन में, मीन जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पर जब क्लीवेज की फॉर्मेशन के दौरान वहां पर कुछ दिक्कत हो गई, या फिर बाय द वे पॉलीस्पर्मी हो गई, मींस एक से ज्यादा स्पर्म अंदर चला गया। इन जनरल एक ही स्पर्म ज्यादा अंदर, एक के सर अंदर। तो अगर 2 एक्सेल मतलब हो गए तो भी हो सकता है ना? हाँ, तो डाई जाइगोटिक ट्विन हो गया, डाई जाइगोटिक ट्विन। बोलो ना। तो सर वो सब पोर्शन में नहीं है? नहीं नहीं, सपोज नहीं, ओके सर। ओनली से जानना है। जानने में क्या आता है? जानने में पैसे लगते हैं। ये आप लोग समझ में आ गया क्या? ये वाला, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह होती है और इससे आगे जाने से रोकता है। इट इज अ टाइट जंक्शन, क्योंकि ब्लड आने जाएगा तो इन स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा ना हो इसलिए ऐसा ब्लड टेस्टिज बैरियर का फॉर्मेशन करता। कौन करता है? सर्टोली सेल्स। इनिशियली क्या होता है? सर्टोली सेल्स होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है, देन फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन फिर स्पर्मेटेड, देन फर्दर इट फॉर्म्स स्पर्म। बोलो ना। यस अंडर। हाँ सर समझा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये वाला आप लोगों को नोट्स में लिखना है, क्लियर है? इसमें क्या होता है, हम लोगों ने बात किया है एफएसएच के बारे में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। It binds with FSH receptors that are attached to the Sertoli cells in the seminiferous tubule. क्लियर है क्या? जिनकी वजह से क्या होती है, it causes these cells to grow and secrete various spermatogenic substance and androgen binding protein, जो कि उनके सरफेस पे अवेलेबल होती है। LH या ICH which stimulates the Leydig cells to secrete testosterone. सर आईसीएच क्या होता है? आईसीएसएच। आगे मैं बढ़ूं, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके सर। LH का ही दूसरा नाम होता है ICH, ICSH। क्लियर? फुल फॉर्म क्या है? हाँ मैं आगे बढ़ूं, सबको बढ़ो सर, आपकी मर्जी है। सब कुछ आगे अपने मर्जी से मत चलाओ। पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर आपको ICH मिल जाएगा। ICH क्या है और कौन कौन सा क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस से क्या होता है? GnRH मींस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ना नया नया टर्म सिखाता नहीं हूँ, मैं सिंपली अपने नोट्स बना करके इसको स्किप कर देता और ये कर लेता। सर मालूम नहीं है सर। तो मैं सब बताऊंगा ना, कोई ऐसा चीज हुआ है जो मैंने आप स्किप किया है? नहीं सर नहीं। मैं बोलता हूँ भले बहुत कुछ कि मैं ये स्किप कर दूँ, मैं वो स्किप कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा चीज बताओ जो आपके सिलेबस में हो और मैंने नहीं बताया हो, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ मैंने बोला भी हो और मैंने स्किप कर दिया हो। ऐसा लगता है तो मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप में फिर इतना सारा मैं इन्फॉर्मेशन क्यों भेजता हूँ? जो किसी एक बच्चे का डाउट होता है मैं ग्रुप में उसको शेयर करता हूँ, शायद अगर ज़्यादा तो आप लोगों को एहसास हो तो। और ये ना पता है, टीचर की मेहनत की एहसास स्टूडेंट को होनी चाहिए। किसी एक को कोई डाउट होती है, उसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब ये अलग बात है कि आप लोग उससे फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो।
बोलो ना, अरे बोलो सही। नहीं यस सर। यस सर। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस का अपने पास डिफरेंट मेथड होगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किया जीएनआरएच है, इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। इनके अलावा कहीं और देखना नहीं है, कहाँ पर नेगेटिव लिखा कहाँ पर पॉजिटिव लिखा, जहां तक मैं लिखा रहा हूँ, जहां पर मैं पेन रख रहा हूँ वहीं पे ध्यान देना है। इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, जहां से 2 गोनेडोट्रोपिन का रिलीज होगा, आईसीएसएच या एलएच या एफएसएच। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इट विल एक्ट ऑन लेडी सेल्स, ये सारा हम लोग पढ़ रखा है। इट विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। लेडी सेल्स में एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करवाएगा, और क्या करवाएगा बताओ, और कौन सा हार्मोन? नाइट्रोजन्स। हाँ, एनर्जी। यहाँ पे फिलहाल में इसका बात करना है, टेस्टोस्टेरोन का। जब ये इनका सेक्रेशन होगा तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और उनके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब कि ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होती है, एबीपी होती है, और इनके बढ़ने से, इनके सेक्रेशन सर्टोली सेल्स के इनको एक्ट करने से, जब इसको एक्ट करेगा, विच विल एक्सिबिट मींस ऐसा करवाएगा कि इट विल फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है क्या? एबीपी क्या करता है दूसरा काम, इट कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफरस टेब्यूल, जिनकी वजह से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज करता है। मींस यहां तक इतना सारा हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ गया, एक्सेस हो गया। जैसे ही ये एक्सेस हो जाएगा, ये फीडबैक जाएगा, जहां से क्या रिलीज होगा, इनहिबिन सर्टोलिस। अभी जैसे हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा, इनहिबिन हार्मोन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। पढ़ा था। वो इनहिबिन हाँ, का रिलीज होगा। जैसे ही इनहिबिन का रिलीज होगा, वो देगा कि नेगेटिव फीडबैक किसको, हाइपोथैलेमस को। बोलो, जब तो हाइपो लेकिन रिलीज कौन करता है इनहिबिन हार्मोन मतलब? पूरी क्या बोलते हैं, पूरी रामायण बोली, बोला सीधा कौन है, यही तो है। अभी मैंने बताया कि सर्टोली सेल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, लिखाया था, हाँ सर समझा। सर्टोली सेल्स करते हैं। क्लियर? यस सर। तो नेगेटिव फीडबैक दोनों को देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, मतलब इधर को भी देगा और इसके बाजू वाले को भी देगा। बाजू वाला किधर क्लास में है कि नहीं है? बाजू वाले क्लास में हो गया? चलो कोई नहीं, नहीं बोलना चाहता नहीं, मत बोलो। फिर क्या बोला मैंने, जब टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, जब इनका लेवल एक्सेस हो जाएगा, तो एक्सेस होने से भी नेगेटिव फीडबैक जाएगा। ये अपना बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी का मैकेनिज्म है, जिनकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक दोनों को जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो मतलब ये प्रोसेस कम हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, फिर ये मेंटेन हो जाएगी। जैसे ही नॉर्मल होगा, फिर से प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस पूरे लाइफ साइकिल में चलती रहती है, क्योंकि मेल्स है ना, मेल्स में लाइफ टाइम टिल डेथ तक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, नो सर। किसी सर ने, आईसीएसएच रह गया अभी तक। भाई मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं बोलने दो। अच्छा, मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या होना चाहिए? एसएच तो स्टिमुलाइजिंग हार्मोन है। क्या क्या बोल रहे हो? वो एसएच तो स्टिमुलाइजिंग हार्मोन है। अच्छा, ये लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? इम्यूनोलॉजिकली वो वाला है। लेडीज का इंटरस्टिशियल में। टमाटर मारूंगा अभी। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर। लेडिक सेल्स कहाँ पे होता है प्रेजेंट? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट हो गए, इंटरस्टिशियल सेल्स में। इंटरस्टिशियल, स्पेसेस में। हाँ, वहां पर क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, उसी का नाम तो लेडिक सेल्स है। हाँ सर। और वही क्या करता है, एलएच को काम करता है, बोलो ना। हाँ। हाँ हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग बोलो। अरे तभी इसको स्टिमुलेट तभी करेगा ना, इनके सेल्स को, इसलिए नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इनका सेक्रेशन कहाँ से होती है? लीडिंग सेल्स। अरे
तमाचा मारूंगा कुछ तो कोई कुछ नहीं बोला। रितिका हाँ सर, कहाँ से होती है? लेडिक सेल्स नो, एंटीरियर पिट्यूटरी से होती आप कंफर्म हो जाओ किस कौन सा बोल रहे हो, एंटीरियर पिट्यूटरी है। या एंटीरियर 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 क्यों होगा? सो वही स्टिमुलेट करेगा ना ICSHILH। और स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को। अरे लेडिक सेल्स कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, उसका नाम दिया हम लोग लेडिक सेल्स, हाँ इसलिए सर, क्योंकि समझा। उसको स्टिमुलेट करता है इसलिए नाम देते इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन अदर वर्ड्स, कान को इधर न पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अरे बोलो ना यार, सर आगे बढ़ो क्या? हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। As we know, sperm is also a cell. So in this, the entire sperm is covered with plasma membrane. Clear? It is covered with plasma membrane, and it is outer part having a acrosome layer. बोलो ना, जो कि sperm को फर्दर रिएक्शन से रोकता है, मीन्स एक्रोजोमल रिएक्शन से रोकता है। इन जनरली क्या होता है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होती है, इनकी होती है डीकैपेसिटेशन। क्या होती है? डीकैपेसिटेशन। इट इज, अच्छा हम लोगों ने आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि डीकैपेसिटेशन क्या होती है, बताया ना? हाँ सर। मोटिलिटी को सप्रेस करता है, प्लस कहां पर? कंजर्व करता है। एपिडिडाइमिस में। अरे जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था हाँ हाँ, याद है सर। हाँ सर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एपिडिडाइमिस, वहां पर क्या होता है, इसकी मोटिलिटी को सप्रेस करता है और एनर्जी कंजर्व करता है। वहीं पर होता है डीकैपेसिटेशन, मींस इनएक्टिव करता है स्पर्म को, सो दैट एनर्जी कैन बी कंजर्व। जैसे ही ये पहुंचता है कहां पर, वेजाइना में, वहां के पीएच और वहां के जो लिक्विड की जो मिल्क टाइप की जो सेक्रेशन होती है, ये इनको करता है एक्टिवेट। क्लियर है? और वहां पर फिर क्या होता है, कैपेसिटेशन। तो एक बार सवाल पूछा गया है कि कैपेसिटेशन कहां होती है, कहां होती है? वजाइना में होगा। क्या बोला? वजाइना। हाँ, वजाइना में कैपेसिटेशन, इट ऑकर्स इन वजाइना बाय गेटिंग द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द वजाइना। इज इट क्लियर? सो इनके इनर पार्ट में क्या होती है, एक्रोसोम होती है, एंड दिस इज द हेड पार्ट। इन हेड पार्ट में मेन क्या होती है, दैट इज द न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, और वी कैन से क्रोमेटिन, दैट इज द डीएनए। बीच में क्या होती है, नेक होती है। क्या होती है? ये नेक होती है, जिसमें क्या होती है, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रल वगैरह का, प्रोक्सिमल एज वेल एज डिस्टल सेंट्रल की अवेलेबिलिटी होती है। क्लियर है क्या? ये नेक में होती है। इन द मिडिल पीस में क्या होती है, न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्विमिंग। मिडिल पीस में क्लियर है क्या? हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्विमिंग, एंड दिस इज द टेल। क्लियर है क्या? हाँ सर। इज इट क्लियर? हाँ सर। So in sperm we have three part: head, middle piece, tail, and it was first seen by Andy van Leeuwenhoek. वो ऐसा इंसान था, वो सब कुछ देखता था। उसने बैक्टीरिया को देखा, उसने और क्या देखा था बताओ, मुझे तो याद नहीं है। लाइव सेल को देखा था। हाँ, फर्स्ट लाइव सेल कौन देखा था? लीवेनहोक ने देखा था। हाँ, लीवेनहोक। हाँ, एंटोनी van Leeuwenhoek। उसने पोर्न वाटर को भी देखा, उसने बैक्टीरिया को देखा, उसने स्पर्म को देखा, और बहुत कुछ ने देखा। पता नहीं उसके हिस्ट्री में फिर बहुत कुछ, इतना हमें को पढ़ना नहीं है ना, अपने को पता करना है। स्पर्मेटोजोन हैज थ्री पार्ट्स: हेड, मिडिल पीस एंड देन फिर टेल। हेड का काम क्या होता है? हेड इज कवर्ड बाय अ कैप दैट वी कॉल एज एक्रोसोमिक कैप, या एक्रोसोम बोलते हैं, which is filled with a lytic enzyme at the anterior portion that we call as anterior cap or Gallia capitis. यहाँ पर TIS का मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं है, यहाँ पे TIS का मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं है। That's why we call this lytic enzyme as sperm lysine, जो कि जोना पेलिसुडा, जो कि एक का लेयर है, उनको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है।
उनको पोर बनाने में हेल्प करता है ताकि वो अंदर चला जाए, फिर बाद में उसको उस पोर का बंद करने का काम किसका होता है? एक के मेम्ब्रेन का होता है। स्पर्म को उसको सिर्फ छेद करना होता है, वो छेद करके अंदर चला जाता है, फिर बाद में का काम उनके एक के मेम्ब्रेन का होता है कि पॉलीस्पर्मी को रोके। क्लियर? यस सर। सो दिस स्पर्म लाइसिन हेल्प इन फर्टिलाइजिंग द ओवन, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए यही लाइटिक एंजाइम होती है, इसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्लियर है क्या? इट्स नेक इज नैरो, हैविंग proximal as well as distal central, which will help in cell division during after fertilization. Clear? सर हाँ सर। सर लेकिन अगर स्पर्म लाइसिन तो काफी मतलब स्पर्म्स में होंगे ना जो विगरस स्पर्म रहेंगे जो पहुंच जाएंगे ओवम तक, काफी इनके पास होंगे। मैडम अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका विगरस भी आएगा, सारा कुछ आएगा, ठीक है ना? हाँ सर। वहां तक पहुंचने दीजिए। आपको ये स्कूल में हो गया क्या? नहीं सर, मैंने पूछा आपको खाली। नहीं, ये आपका चैप्टर क्लास स्कूल में हो गया है। माइक ऑफ है। स्कूल में नहीं हो सर। मतलब आपने खुद से पढ़ा है? आएगा सर, आएगा। तो सब थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, सब आएगा। सर आपने ही पढ़ाया था विगरस मोटिलिटी का वैसे। अच्छा, मैंने पढ़ा है। हाँ सर। मैंने बोला मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने क्या पढ़ा है। जब मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे याद है मुझे क्या पढ़ाना है और क्या करना है। सो इट हेल्प इन फर्टिलाइजिंग द ओवम। क्लियर? इन नेक पोर्शन देयर इज proximal as well as distal centrole. In the nucleus of hydrogen the DNA is present. नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल पीस के बारे में। इट इज द एनर्जी चैम्बर and the thin layer of cytoplasm is present in the middle piece that we call as manchete. manchete या manchete बोलते हैं। क्लियर है क्या? A thin layer of cytoplasm present in the middle piece that we call as manchete. जैसे हम लोगों ने बात किया ना, फोर्थ सीट है कहाँ पर? हो जाएगा। क्लिटोरिस। नहीं नेक्स्ट सर, नीचे के साइड पे ना। लेबिया माइनोरा जब। अच्छा हाँ, नीचे वाला पार्ट में था ना। हाँ। अच्छा, आप लोग को याद है, मैं भूल जाता हूँ। नेक्स्ट है टेल, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म दैट हेल्प इन मूवमेंट और स्विमिंग ऑफ स्पर्म दैट वी कॉल एज टेल। सो टेल का काम क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको जानना हो कि टेल मूवमेंट में काम करता है नहीं करता है, एक बार क्या काम करना, आप जो स्नेक वगैरह होता है ना उसका पूंछ काट देना। ऐसा करना मत, आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, फिर मैं बता रहा हूँ। तो उनके ऊपर चलने में दिक्कत होगी ना। सो इस जो टेल होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। सो तो स्पर्म मैशीट है ना, वो कहाँ पे होनी? क्या? मैशीट है ना, वो कहाँ पे? समझा नहीं। मैनशीटे हाँ। MANCHETTE। वो जो कहाँ पे लेके? मिडिल पीस होती है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होती है, वहां पर साइटोप्लाज्म की एक पतली सी अंदर लेयर होती है। जो आपका सेल तो सेल के देखो, एक्रोजोमल कैप सिर्फ एंटीरियर पोर्शन पे होगी, बाद बाकी उसके उसके चारों तरफ से क्या होंगी? पूरे टेल तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे है कि नहीं? हाँ। सो उस जो आपका मिडिल पीस है उसके अंदर अब सेल है ना, सेल का पार्ट है, तो वहां पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी होगा। सो देयर इज अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म दैट वी कॉल है इन द मिडिल पीस दैट वी कॉल एज मैनशीटे। यस, मिडिल पीस में अवेलेबल होगी। और स्पर्म का लेबलिंग में सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? वो किसके लिए होता है, मतलब वो क्या मैशीट किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? साइटोप्लाज्म किसके लिए होता है? साइटोप्लाज्म का एक दूसरा नाम है मैनशीटे। अच्छा ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। देखो नया टर्म देख के ना कुछ मतलब ज्यादा कुछ जानने की कोशिश मतलब फिर आपको कंफ्यूजन हो जाओगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ तक भी इसको लिमिट कर सकता था ना, लेकिन मैं जान लो अच्छा रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपको सारा चीज आ जाएगा, जितना भी 11 12 में ना सारा फर्स्ट ईयर में अच्छे से आएगा। थोड़ा सा लिमिट हो तो अच्छा रहेगा ना। बताने को तो बहुत कुछ है, जो भी मैंने आपको बताया ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ सर। सर एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सुनो तो, जैसे आप लोग ये करोगे सर ये क्या होता है वो क्या होता है, अगर मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझाने लगूँ ना, 15-20 पेज के नोट्स उसी का हो जाएगा। करा दूं?
सर ये आप मतलब पास्ट ईयर पेपर से नोट्स बनाते हो क्या, या आप कोटा से नोट्स बनाते हो? मतलब ये मतलब एनसीईआरटी में रहता नहीं है ऐसे? नहीं होता एनसीईआरटी में क्या, मैं तुम्हें दिखाऊं? नहीं, एनसीईआरटी में रहता है बट काफी हद तक आप बाहर से देते हो ना। हाँ एनसीईआरटी पूरा है सर, वो नहीं बोल रहा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और देखो, साइड नोट्स यही होता है इसमें। तो दिखाओ ना सर, चला तो गया। वही कहाँ से है मतलब? ये कहाँ हाँ से? सर, मतलब कोटा के नोट्स है क्या आपके मतलब? कोटा का नोट्स मैं किसी का नोट्स फॉलो नहीं करता। सर मैंने ऑनलाइन देखे थे सर, कुछ कुछ डाउनलोड किए थे सर, उसमें ऐसे ही डिटेल में देते हो। देखो अब ऐसा है ना, जब तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या होता है इसमें। यस सर। जब आप बड़े हो जाओगे, जब मेरे एज में पहुंच जाओगे, तो जब आप किसी चीज को पढ़ोगे ना, अब मान लो मैंने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा होता है, टाइप ए टाइप बी होता है। अब होता है तो होता है, आप चाहे मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ाओ, दोनों चीज सेम आएगी ना। मैं तो कोई टाइप सी और टाइप बी नहीं कर सकता ना। तो दिस आर द बेसिक फंडास। डिफरेंस होती है टीचिंग स्टाइल में, कंटेंट वही होती है, टीचर्स पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे फर्क पड़ता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन में फर्क पड़ता है। मैंने क्या बोला तुम्हें पिछले क्लास में, मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है पढ़ाते कैसे। दैट्स माई स्टाइल, और इसी पे मुझे अच्छा लगता है। क्लियर है? यस सर। जो मैं फील करता हूँ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग कुछ अच्छा सा कर सको। बोलो ना, ये मत कि मैं अच्छा हाँ, केमिस्ट्री वगैरह के लिए मैं किसी और का नोट्स फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन एज फार एज बायोलॉजी दिस इज माई पर्सनल नोट्स। ये आपको किसी और का नोट्स लग रहा है क्या? ये आज ही का नोट्स, आपका ही है। आपके ही है सर। ये आज ही का नोट्स, यस सर। ये आज ही का लिखा हुआ है। अरे आप लोग क्लास में सो रहे हो क्या? भूमिका, फरहान, आरब, तनुश्री, नहीं सर। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? तो क्लास में ही है, हाँ, क्लास में ही है। क्लास में हो। हाँ। तो हम लोग कहाँ पर थे? आप लोग, ये सब चार बच्चे ना मुझे बहुत डाइवर्ट करते हैं। ये चार सामने वाला समर्थ, तीन बच्चे समर्थ, सुजाल, ऋतिका। सो स्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द होल पार्ट। क्लियर है क्या? इन ह्यूमन मेल इट इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर क्वाइटस। ऋतिका क्लियर है? सर अभी दूसरा नंबर है। ये पर क्वाइटस है बेटा। सर उधर भी अलग नंबर दिया था आपने। अलग नंबर दिया था? हाँ सर, आपने बोला था कि एक एमएल में ये 120 मिलियन रहते हैं, तो सर इंटू 5 करोड़। नहीं नहीं सर, सेम है सर, सेम है। 200 तो 300 ही थे। तो 20 से 120 और 200 से 300 में कंफ्यूज हो ये रहा है। अप्रोक्स है ना यार। तो आपसे सवाल ये पूछ लिया कि ये 200 टू, हम पर क्वाइटस की बात करते हैं ना, पर कोइटस मतलब एक एजैकुलेशन क्या? एक इंसेमिनेशन, वन इंटरकोर्स। हाँ तो सर 5 एमएल तो सर मल्टीप्लाई किया तो सर मतलब 300 ज्यादा ही होगा ना, इंटू 120। 20 into 5, मतलब एक रफ आइडिया लेगा ऑन एन एवरेज इतना सारा होता है। अब इसके बेसिक आइडिया से मत जाओ ना, जो मैंने आपको पहला वाला डाटा दिया था, ये वाला दोनों आपको दिमाग में ये रखना है। ओके सर। आप हाँ सर, ये एनसीईआरटी का है ना। आप अगर एक एक स्पर्म को गिनने लगो ना, तो फिर मुझे बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ देना पड़ेगा। क्लियर है? ऑन एन एवरेज हम इसको एवरेज में लेते हैं। ये वो चीज नहीं है इसको हम एक एक करके गिन सकते हैं, हाँ एक ये स्पर्म, ये दूसरा स्पर्म हो गया। क्लियर है क्या? सो आउट ऑफ विच, जो ऋतिका कह रही थी कि जिसमें से पर क्वाइटस में, और ये देखो नेचुरल फिनोमेना है, एट ए टाइम एक इंटरकोर्स में एक सम अमाउंट ऑफ सीमेन का रिलीज होगा, उसके बाद दैट पेनिस बिकम्स फ्लैसिड एंड गेट रिलैक्स। एट द टाइम देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इंटरकोर्स अगेन। एक नेचुरल फिनोमेना, क्यों? कि एनर्जी को कंजर्व कर सके। आफ्टर सम टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी, बट एट द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है क्या? सो आउट ऑफ विच द फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी मीन्स एग को फर्टिलाइज करने के लिए इनमें से इन 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। नॉर्मल शेप एंड साइज, ये एनसीईआरटी का डाटा एज इट इज सवाल पूछा गया है। आपने दिया है पहले। जिनमें से एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट हैव शोज जो कि अपना टारगेट तक पहुंच पाए। और टारगेट क्या है? एग। क्लियर है? मैं थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है ना कि मैं स्टार वाले को पढ़ा रखा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ,
तो मुझे पता नहीं कि सवाल पूछा है स्टार वालों ने पूछा है या फिर एपेयरिंग वालों ने पूछा है। इसमें मैं चलो नहीं, मैं दोबारा कर लेता हूँ जिसका भी हो। वो उन लोगों का भी कुछ ऐसे डाउट था, आप लोगों का भी सेम डाउट है। नेक्स्ट बात करते हैं पाथ ऑफ स्पर्म की। स्पर्म कैसे कैसे ट्रेवल करेगा और इसके रिगार्डिंग भी सवाल पूछे जाते हैं। ये भी हो गया था। ये हो गया था, पाथ ऑफ स्पर्म हो गया था। सेमीफेस्टिब्यूल, ये है। वेस एपरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वेस डिफरेंस, यूरिनोजेनिटल चैम्बर, यूरेथ्रा। मेरे को यूरेनोजेनिटल चेम्बर कहाँ पे नहीं समझता। यूरेथ्रा से पहले जहाँ पे सारा का सारा सीमेन का कलेक्शन होती है सारे ग्लैंड्स की, और जहाँ पे स्पर्म और दोनों आके स्पर्म का पाथ और यूरिन का पाथ आके मिलता है। तो एम्प्यूला के यहाँ पे क्या? अरे नहीं नहीं, वो सब के सब सारा का सारा सीमेन, जहाँ पे सीमेन बन चुका है ना, सीमेन के जस्ट अगला जहाँ पे पूरा सीमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथेरल ग्लैंड प्लस सेमिनल वेसिकल्स, इन तीनों का सेक्रेशन प्लस स्पर्म तीनों जब मिल जाए, जब ये आगे बढ़ेगा, यूरेथ्रा जस्ट पहले वाला पार्ट एट द बेस दैट वी कॉल एज यूरिनोजेनिटल चैम्बर, ठीक है सर। एंड फाइनली इट लीड्स टू वेजाइना। क्लियर है क्या? या फिर एक्सटीरियर, और इन द केस ऑफ नाइटफॉल या फिर इस तरीके से ऑटोमेटिक डिस्चार्ज। इज इट क्लियर? यस सर। थोड़ा सा ये वाला डायग्राम देख लो, ब्लड टेस्टिस बैरियर का बना हुआ है। ये वाला क्या है? ब्लड टेस्टिस बैरियर है, बस ऐसा नो। बात बाकी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, प्लीज 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 इसमें कुछ आपको सवाल नहीं करना है, ठीक है ना? सिर्फ इतना समझ लो, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, ये ब्लड्स को आगे जाने से रोकता है, क्योंकि ब्लड में क्या होती है अपने पास? मैक्रोफेज और Macrophages होता है। इम्यूनो न्यूट्रोफिल्स को सर। इम्यून सिस्टम के सेल्स होती है, ठीक है ना? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ताकि इसको रोक सके। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाले को टाइट जंक्शन बोलते हैं, ये वाले को। क्लियर है क्या? बात पे कि इधर रहे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इस एरिया में ब्लड नहीं होती है, इस एरिया में ब्लड नहीं होती। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर, हाँ सर। सब बनाना है ये वाला भी। नहीं नहीं, जो मैंने बनाया वो वाला बना लेना, ठीक है ना? हाँ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, आप लोगों का कुछ टाइम है क्या? कुछ मैं सवाल कर लूँ? लिखना है ना? लिखना, मैं नोट भेज रहा हूँ ना सर मेरे पास नहीं है। बेटा, 2-3 मिनट दे दो, हो गया। चलो पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी? सबके सब तैयार हो गया? यस। अरे बोलो। Yes. सबके सब वीडियो ऑन करो। हाँ, पार्टीशन ऑफ टेस्टिस डेवलप फ्रॉम, पार्टीशन ऑफ टेस्टिस डेवलप फ्रॉम, मतलब डर्मल होगा क्या ये? ऑप्शन दे रहा हूँ, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेस्कुलोसा, टूनिका वेजाइनालिस, रिट टेस्टिस। और ए। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन पार्टीशन ऑफ टेस्टिस डेवलप फ्रॉम, अल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेस्कुलोसा, टूनिका वेजाइनालिस। बोलो यही है सर, कौन सा? एल्बुजिनिया। यही सर, टूनिका वाजिनालिस होगा। टूनिका वाजिनालिस। सर रेट टेस्ट अच्छा, लोब्यूल्स होता है ना तो। पार्टीशन होगा ना टेस्टिस। हाँ सर 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सर बाकी तो लेयर्स है। डेवलप्स फ्रॉम, हाँ सर, टेस्टिस तो वेजिनलिस ही होगा। बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो लेकिन। सर क्वेश्चन मुझे समझा नहीं, सॉरी। तो आप ही बता दो सर। अरे टेस्टिस का पार्टीशन कहाँ से शुरू होता है? रेट टेस्टिस से सर। टूनिका वेजाइनालिस सर लोब्यूल्स जो होते हैं वो एल्बुजिनिया से डिवाइड होते हैं। दैट इज द एल्बुजिनिया ना। यस सर, लेकिन आपने टेस्टिस पूछा ना, तो जो सबसे बाहर का लेयर है वो टेस्टिस को डिवाइड करेगा ना। टेस्टिस तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है उसको अच्छा, वेजाइनालिस को डिवाइड करता है। सर, मतलब वो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है ना, तो वो 2 को डिवाइड करेगा ना थोड़ा बहुत। पार्टीशन ऑफ टेस्टिस मतलब क्या? टेस्ट के अंदर कंपार्टमेंट फॉर्म कहाँ पर हो रही है? हाँ, तो एल्बुजिनिया ही। अल्बुजिनिया। तो मुझे लगा जिधर एब्सेंट है उधर पूछ ले। Mass difference arises from cauda epididymis, caput epididymis, corpus epididymis, reed testis। कॉर्डा एपिडर्मिस। कॉर्डा। कोडा, कोडा मतलब टेल्स। लिखा है था क्या? नहीं लिखा है तो लिख लो।
कॉर्डा का मतलब होता है टेल। ग्लोबुला माइनर ये है ना? कॉर्डा का मतलब होता है टेल्स, इसको लिख लो। कैपेट का मतलब होता है हेड। एपिडिडाइमिस का हेड पोर्शन और टेल पोर्शन, क्लियर है क्या? सो वेज डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम टेल रीजन, बोलो ना। यस सर। और कल आप लोगों का पता है क्या है ना, वो सेल का वो टेस्ट है, मतलब सेल का वो क्वेश्चन क्विज वाला है। अब कितना टाइम लोगे वो? जितने में हो जाए। सर 1 ही घंटा लेना। तो सुबह होगा। हाँ, 10 to 10 से रख लो आप लोग। सर सेल डिवीजन नहीं करेंगे ना, सिर्फ सेल ही करेंगे ना? हाँ, सिर्फ सेल। हाँ। टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय Leydig cells. लीडिंग सेल्स। अरे फरहान, तरुण, आरब, Leydig cells. भूमिका, आप लोग क्लास में हो क्या? तनुश्री, तबीयत खराब है क्या आपकी? आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तनुश्री, नेट का इशू होगा। तनुश्री, in between spermatogonia are found. In between spermatogonia are found सर्टोली सेल्स। Sir, options. germinal cells, epithelial cells, lymphatic space. क्या सर Epithelial वापस? cell. In between spermatogonia are found Sertoli cells, germinal cells, epithelial cells, lymphatic space. Sertoli cells. सर्टोली सेल्स। Totally. नेक्स्ट क्वेश्चन है, vagina of the female reproductive system is primary sex organ, essential sex organ, secondary sex organ, both 1 and 2. Okay. हाँ, क्या बोला आपने? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। Secondary. vagina of female reproductive system Sir, is नहीं, क्या? sir, कुछ नहीं. आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन आप लोग प्राइमरी, एसेंशियल, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, बोथ 1 and 2. सेकेंडरी होगा। Secondary. Primary and essential sex organ है. सेकेंडरी प्राइमरी बस ओवर रहता है, ओवर। वो बनाता थोड़ी है वो। ओवरी होता है ना। एसेंशियल में या फिर प्राइमरी ओनली वन ऑर्गन है, कौन सा? ओवरी और टेस्टिस। ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, काय के लिए तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है? दिमाग है ना, वो कॉमन सेंस लगाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कॉमन सेंस इज सेंस व्हिच इज नॉट कॉमन टू ऑल। ऐसा मत करो बेटा, प्लीज, ऐसा नहीं करते। जो कि इनिशियली से प्रेजेंट है ना, दैट इज द प्राइमरी। ठीक है। समझा. डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस इन वजाइना, यूटेरस, ओवरी, ओविडक्ट। Uterus. Uterus. यूट्रस। Bartholin gland occurs in, पहला ऑप्शन फीमेल एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर lubrication, सेकंड फीमेल एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन फॉर रेगुलेटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तीसरा मेल्स एंड फॉर्म लिक्विड पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक फ्लूइड, फोर्थ वन मेल एंड प्रोड्यूस एल्कलाइन फ्लूइड फॉर न्यूट्रलाइजिंग। Option A. Option ए। A होगा. भूमिका, हाँ सर। आप क्लास में नहीं हो मेरा स्टूडेंट क्या? नहीं सर। ना आप टीचर हो, नहीं। तो फिर आंसर क्यों नहीं मिल रहा मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एब्डोमिनल ओस्टियम इज द एपर्चर प्रेजेंट इन ओविडक्ट, ओविसैक, फिम्बिरिएटेड, फैलोपियन फनेल या क्लोएका? Question क्या सर? Abdominal ostium is the aperture present in oviduct, fimbirated fallopian tube, fallopian funnel, cloaca, ovisac. ओवी सैक है क्या? नहीं सर, वो अपने वो क्या बोला, फिमरी है। Fimbirated फिमरी है। fallopian funnel ना? हाँ, फिमरिया में होगा। अरे बोलो ना, अरे बोल दो तो। हाँ सर। आपकी क्लास कितने बजे रहेगा? सर मेरा 6 बजे. 6 बजे ना, थोड़ा सा और टाइम दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन स्पर्म इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वैन बेयर, लेवेनहुक, रॉबर्ट हुक, डार्विन। लेवेनहॉक ने हाँ। देखा था ना स्पर्म सेल. अब पता नहीं, देखा था, डिस्कवर किया था, मुझे नहीं पता। लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ही है. भूमिका,
आपको समझ में क्यों नहीं आ रही मुझे तो वो बोल लास्ट क्वेश्चन जो था आप हाँ सर उसको समझाओगे एक बार? कौन सा वो बार्थोले एब्डोमिनल ओएस्ट्रम वाला जो था। ऑस्टियम मींस एक तरह का ये ओपनिंग होती है Opening. जो कि फिम्ब्रिएटेड फेलोपियन हाँ सर समझा। टनल में, ठीक है ना, हाँ ओके ओके ऑल अपार्ट। नेक्स्ट पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच spermatids change into spermatozoa. Spermatogonia produce a spermatid. Spermatocyte give rise to spermatozoa. Dormant spermatozoa becomes active just before ejaculation. Spermatogenesis फर्स्ट बोला है ना? ऑप्शन, Spermiogenesis. फर्स्ट ऑप्शन सर ये क्वेश्चन स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटोजोन वाला। हाँ सही है। हाँ हाँ सर ये Next है, क्वेश्चन है आपके पास क्या बोल रहे हो? मतलब देख सर आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन है पीडीएफ फॉर्म में या फिर मैं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो उसको सर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए उसको। पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा भेज दूं? हाँ सर आप लोग पहले आंसर तो दो ना, मैं सब कुछ भेज दूंगा, अपने आप को भेज दूंगा, ठीक है? सर आप ऑप्शंस एक बार में से बोल रहे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है मुझको। स्पर्मेटोजेनेसिस का मैंने ऑप्शन दिया कि स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्मेटोजुआ, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म differentiation are under the control of FSH, LH, progesterone, parathyroid hormone. क्वेश्चन सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दो सर वापस। Spermatogenesis and sperm differentiation are under the control of, पहला है FSH, दूसरा है LH, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, चौथा है पैराथायराइड हार्मोन। एफएसएच एलएच बी स्पर्मेटोजेनेसिस एलएच ना। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड FSH स्पर्म डिफरेंशिएशन थोड़ी दोनों करते हैं तो डी होगा ना सर। पैराथायराइड कौन सा? सर डिफरेंशिएशन तो दोनों नहीं करते हैं ना। अच्छा फिर कौन करता है? सर एफएसएच तो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। सर sperm- न्यूट्रिशन और टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करता है डिफरेंशिएशन। तो एलएच होगा ना। प्रोजेस्टेरोन तो हो ही नहीं सकता। लास्ट के दोनों नहीं हो सकते। सर एलएच होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इनका स्पर्म डिफरेंशिएशन आर डन बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच। सर मैच्योरेशन LH में डिफरेंशिएशन तो आपने सेम है। स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था। मैच्योरेशन में तो आता है सारा चीज, डिफरेंशिएट होते तभी तो बड़े होते हैं ना। ठीक है सर ओके। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस ए प्रोसेस ऑकर इन, बोलो ना। सेमिनिफेरस सर लास्ट क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच। आपने एलएच लिखवाया था ना कि स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट्स टेस्टोस्टेरोन देता है जो एफएसएच एंड्रोजन देगा ना। अब एफएसएच आएगा लेडिक सेल्स पे, नॉट लेडिक सेल्स। एलएच लेडिक सेल्स पे काम करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये किसकी वजह से होता है? सर्टोली सेल्स में एक्ट करने की वजह से। और सर्टोली सेल पे काम कौन करता है? एफएसएच। तो एफएसएच के कंट्रोल में होगा ना, उनका तो काम होता है एंड्रोजन रिलीज करना। तो आपने एंड्रोजन पे लास्ट टाइम लिखवाया था कि स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। रुक जाओ रुक जाओ, हाँ सर। देखना तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं क्या? FSH acts on Sertoli cells जहाँ पर ABP access spermatogenesis। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तभी तो ये सारा काम हो पाएगा ना। और ये क्या करता है? लेडिक सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझा सर। अभी नहीं क्लियर है क्या बताओ? क्लियर है क्लियर है। पक्का? हाँ सर। ये तो हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन acrosome formation in spermatogenesis occurs in which stage? ये भी नहीं पढ़े हैं क्या? प्यूबर्टी पे होता है। प्यूबर्टी पे होता है ना। Acrosome formation in spermatogenesis occurs in which stage?
फर्स्ट meiotic division, growth phase, second meiotic division, spermiogenesis. Spermiogenesis. बोलो। तो ये नहीं पढ़ा ना सर नहीं ऑप्शन पता। रिपीट करेंगे? फर्स्ट meiotic division, second meiotic division, growth phase, spermiogenesis. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। एक्रोसोम का फॉर्मेशन से बोल रहे हो ना आप, लेकिन अच्छा अभी वो अभी हुआ नहीं ना, दैट इज द spermiogenesis. सिंथेसिस पे। अच्छा हाँ, spermiogenesis तो जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट होगा तभी तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा ना उसपे। और तभी जिनकी वजह से वो इनएक्टिव, मतलब कि इनएक्टिव होने के लिए वो ओवा का फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होते हैं। 10 oogynia yield 10 प्राइमरी oocyte, ये भी हुआ नहीं है। Sperm differs from egg in having power of motility, more in numbers, no stored food, all of the above. और Of the ऑल ऑफ द अबव। बाद बाकी ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।